مجھے بتائیے کیا میں نارین السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. آپ بتائیے. الحمد للہ آج بہتر ہوں. ہاں شکر اللہ کا. کیا بس کچھ 2 دن سے بخار تھا. ہاں مجھے بخار تھا تو بس تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہوں. مطلب آج کل آپ کو پتا ہے نارمل ذرا سا گلا بھی خراب ہو تو جاتا ادھر ہی دھیان جاتا ہے جی. تو بس وہ کیونکہ میری امی ساتھ ہوتی ہیں نا تو ان کی وجہ سے آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ویری کیئرفل. ہاں بالکل صحیح. تو نہیں الحمدللہ ٹھیک ہوں جی. کل مل رہے ہیں پھر انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں جی جی حسن صاحب کائنڈلی گیو اے ریمائنڈر فار ڈاکٹر صاحب کہ ایسا کچھ ہے کہ انتظار کر ان کا. ویسے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں نہیں ہم اپنا اسمبلی کا سیشن بھی ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے. اور کیا آرام سے کر لیتے ہیں. پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے الٹیمیٹلی. اب آپ دیکھیں کہ ہم کتنے ٹیسٹ کرائیں گے. بالکل. ابھی میں اور نے اچھا ٹیسٹ خاصا اریٹیٹنگ ہے. ہاں اچھا خاصا وہ اریٹیٹنگ ہے. مطلب کافی اریٹیٹنگ ہے. اور وہ بس I don't know, we should come up with some technology. تو ہے ہی ہے but we should use it. آپ لوگ کل آئیں گے؟ جی کل میں صبح 10 بجے کی فلائٹ. خیر سے آئیں. چودھری فواز صاحب تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا یوز کیا جائے. ہاں جی انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا. میں نے تو بڑا ان کو ری ٹویٹ بھی کرتی ہوں اور بڑا اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. بیکاز دیکھیں اب آگے نیو ورلڈ آرڈر از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ لائک دس. وی کانٹ بی ان لارج میس جو ہیں وہ فزیکل پریزنس از ناٹ نیسیسری. ایٹ لیسٹ اگلے 1-2 سال تو ہمیں کرونا اور اس قسم کے ایپیڈیمکس کے ساتھ ہمیں اس ساری صورتحال میں رہنا ہی پڑے گا. تو the sooner the better we should equip ourselves. We must adapt to it نا. اب آگے تو یہی کرنا ہے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہے. اب نیکسٹ جنریشن تو خیر بہت ہی اڈیپٹیبل ہے. یہ حسن وغیرہ and all these youngsters and they know how to deal with it. اور اب تو دور ذرا ٹیکنالوجی کا جی. ورچوئل گورنمنٹ, ورچوئل ایجوکیشن, ورچوئل میٹنگ. ہاں جی ورچولی. آپ دیکھیں سارا یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں سب ان کے ایگزامز اس طرح دے آر کنڈکٹنگ تھرو ورچوئل. یہ جتنے بھی ہو رہے ہیں میرے پوتے ہیں 4 سال کے, ان کی کلاس ہوتی ہے ویب پہ. سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور بیٹھے اپنے گھر سے کلاس کر رہے ہیں. میڈم اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں آج ہم شاید تھوڑا سا ٹچ اپ کریں گے جو سوشل میڈیا کے جو رولز آ رہے ہیں آن لائن طریقہ کے ساتھ ساتھ ہم اس کی تھوڑی سی بات کریں گے. یہ جو بھی رول جو بھی گورنمنٹ نے فی الحال ان کو ہیڈ ریپلیس کیا ہے, کنسلٹیشن سٹارٹ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے یوز کے حوالے سے سوشل میڈیا کمپنیز کا رول کیا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں بہت ڈیبیٹ چلتی رہی ہے. پروٹیکشن آف سٹیزن اگینسٹ آن لائن ہارم کے نام سے رولز انہوں نے نوٹیفائی کیے تھے. پھر بعد میں سول سوسائٹی نے, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا اور اس کو انہوں نے ہیڈ ریپلیس کر دیا. کنسلٹیشن کی جائے وہ اس لیے وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ آگے آئندہ آنے والا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے اور اس کا ہے آئی ٹی کا ہے. تو اس حوالے سے جو بھی ڈسکشن ہو وہ بڑی بالکل ہونی چاہیے کہ فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ ہونی چاہیے. تو آج ہم اس میں تھوڑی سی بات کریں گے جیسے ابھی ریاست میں جوائن کرتے ہیں ہم کرتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے ریگولیشنز آ رہے ہیں جن کے اوپر اعتراضات ہیں کچھ قسم کے اعتراضات ہیں. We will try to basically assist honorable parliamentarians کہ وہ اس کے اوپر جب ڈیبیٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ پھر زیادہ بہتر طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکیں گے ان دونوں ایشوز کے حوالے سے. سوری یہ بتائیے ٹاپک کیا ہے اور اس کے علاوہ. دو میڈم آج ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں. پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے حوالے سے بات ہوگی. پیکا میں کچھ ایشوز ہیں. پیکا کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے 2 قسم کی رائے آتی ہیں. جب سٹیزنز کمپلینرز جاتے ہیں وہاں پر تو وہ کہتے ہیں جی یہ ٹروتھ لیس لا ہے اور اس میں کوئی کارروائی نہیں ہوتی, کریکٹر ایسوسیشن چل رہی ہوتی ہے. اچھا لیکن جب آپ
سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کی بات کرتے ہیں, سٹیزن جرنلزم کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لا از ایکسٹرا آرڈینریلی ایکٹیو. تو اس لا میں سائبر ٹیررزم اور سائبر کرائم کو مکس کیا ہوا ہے. تو وہ اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے فریڈم آف ایکسپریشن کو کس حد تک یہ لا جو ہے پرابلم دے رہا ہے اور کیسے وہ کرٹیل کر رہا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کو. اور اسلام میں اگینسٹ مس یوز جو سیف گارڈ ہونے چاہیے وہ نہیں ہے. تو لا کے 2-3 ایک اس لا کے اندر کچھ ایشوز ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن میکینزم میں ایشوز ہیں, اس کے تحت جو رولز جا رہے ہیں ان کو لا کے اسپرٹ کے خلاف بنایا جا رہا ہے. تو ان پہ تھوڑی سی بات کریں. اور دوسرا پھر ہم یہ کریں گے کہ اب جو سوشل میڈیا رولز ہیں وہ بھی پیکا کے تحت اس کے خاصی چیزیں بنائی گئی, جو انفورسمنٹ کی چیزیں وہ پیکا کے تحت بنائی گئی. تو اس کنٹیکسٹ میں بات کریں گے. جیسے ابھی ہم ریاض صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ہم اس کا فارمل اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ. تو اس میں پھر کتنے لوگوں نے جوائن کر لیا ابھی ہمیں حسن صاحب کائنڈلی اپڈیٹ کیجیے گا. 215 ہو گئے ہیں نا, اس لیے جی 14 پارٹیسپینٹس ہیں. آئی ایم جسٹ ویٹنگ کہ فتیانہ صاحب کا کیمرہ آن ہو جائے. میں انہیں کال کر رہا ہوں کہ وہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا حسن. جی بس اتنی دیر جسٹ ڈسکشن ہے, جیسے آپ کنکلوڈ کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا ہماری سائڈ سے 10 منٹ کی ٹیکنیکل بات ہوگی, اس کے بعد اٹس اپ ٹو یو جو اس سے سامنے آتے ہیں اس میں انشاءاللہ جو بات کرنا چاہے. ٹھیک حسن صاحب ٹرائی کر رہے ہیں اتنی دیر میں فتح صاحب کو آن لائن لینے کے لیے, تو پھر ان کی اجازت سے ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں, وہ بعد میں جوائن کر لیں گے. ٹیکنالوجی ہے نا اصل میں, یہ ہماری جنریشن کے لیے ذرا اڈیپٹ کرنا مشکل. میں یہی کہہ رہی ہوں. بچے تو آج کل کے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے آرام سے کر لیتے ہیں, حیرت ہوتی ہے. دماغوں میں چپ کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں جی وہ تو. یہ بات بھی صحیح کی آپ نے. بکاز میری جی نوازی ہے 2 سال کی, اور میں تو حیران ہوں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ کو ایسا بنایا. ہم لوگ کوئی ڈم بچے تھے, لیکن وہ تو ایسے جی, وہ اتنی 2 سال کی بچی, آپ اندازہ کریں کہ اس کی کتنی ایک سمجھ ہے, لیکن اس کو ٹیلی فون آپریٹ کرنا آتا ہے. ہاں بالکل ایسے لیں گے, پاسورڈ سو پوچھیں گے. امیزنگ. میں تو حیران ہوتی ہوں, اور میں اللہ تعالیٰ کو کہتی ہوں کہ اللہ میاں یہ بچے آپ نے نئی ٹیکنالوجی کے ہی پیدا کیے. بالکل وہ تو آئیں گے, فون اٹھائیں گے, دادی پاسورڈ بتا دیا, چلو جی اپنے یوٹیوب نکالا, اپنے کارٹون نکالے, دیکھنا شروع ہو گیا, بس بات پتا. کیونکہ دیکھیں وہ مجھے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے کارٹونس دیکھتی ہے نا, تو وہ اس کے اوپر کبھی ایڈ آ جاتا ہے تو نیچے لکھا ہوتا ہے نا اسکپ دا ایڈ. Now she has figured out, وہ پڑھ تو نہیں سکتی, but she has figured out کہ جب یہ چیز آتی ہے اس کو میں نے سائڈ سے سلائڈ کرنا ہے. دیکھیں کتنی اس کی سمجھ ہوگی نا, تو وہ ایک دم اسکپ کو نا فوراً اس کو سلائڈ کر دیتی. بس صحیح کہ اللہ تو بس اللہ اکبر. بس اصل میں ہم لوگ جو تھے نا اپنی پیرنٹس سے کوئی 1 جنریشن آگے پیچھے تھے, یہ بچے جو ہیں یہ کوئی 10 جنریشن آگے ہیں. ایگزیکٹلی, بڑا جنریشن گیپ ہے. سنا آپ اجازت لیں ریاض صاحب سے, پھر میٹنگ سٹارٹ کریں یار. جی وہ فون کال پہ تھے, وہ کہہ رہے تھے میں بس جوائن کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کو, مطلب ہی از جوائنڈ بٹ صرف ان کا کیمرہ آن ہونا ہے. سو آئی ایم اسیومنگ وہ سن تو سکتے ہیں ہمیں, پر منورہ بی بی صاحبہ سے بھی بات ہو رہی ہے, وہ ان کا انٹرنیٹ تھوڑا سا ویک ہے, تو وہ آن اینڈ آف رہے گا ان کا. وہ دوبارہ کوشش کر رہی ہیں جوائن کرنا. میڈم وہاں سے بلوچستان سے جوائن کر رہی ہے اسلام آباد میں؟ نہیں, وہ بلوچستان میں اس وقت میرا خیال ہے. مطلب کیا بنا آج ان کے پی ٹی اے کی کنسلٹیشن کا ان کے حوالے سے جو چودھری صاحب صبح ایک تھی 11 بجے سول سوسائٹی والی, اس میں
जहाँ तक मुझे जिन लोगों का पता है उन्होंने तो ज्वाइन नहीं किया था. हम लोगों ने उनको अपने कंसर्न्स भेज दिए थे जो रिटन थे, बट कंसल्टेशन में उस तरह से नहीं ज्वाइन किया था. हमने यही भेजा था उन्हें कि जो आपने फ्रेमवर्क बनाया है क्वेश्चनर के अंदर, दैट इज़ वेरी लिमिटिंग. तो जो डिस्कशन और कंसल्टेशन करें उसको थोड़ा सा उसका स्कोप बढ़ाएं और सिर्फ जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है उसके ऊपर लिमिट ना रखें. जो दूसरी जर्नलिस्ट वाली कंसल्टेशन है वो 2 बजे शुरू होनी थी, तो वो अभी जारी होगी. आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट कि किन जर्नलिस्ट ने ज्वाइन, लोग पता है जिनको इनवाइट किया था. तो अब 3 बजे वो खत्म होगी, तो देन वील गेट एन अपडेट के एग्जैक्टली क्या डिस्कशन हुई. बट जहाँ तक मुझे अंदाजा बाकी जो फीलर्स मिले हैं, तो श्री मिजारी साहबा ये कह रही हैं कि जो हम फीडबैक लेना चाह रहे हैं वो थोड़ा ब्रॉडर स्कोप में लेना चाह रहे हैं, नॉट जस्ट फोकस ऑन द रूल्स देमसेल्व्स. सोशल मीडिया रेगुलेशन के ऊपर ओवरऑल फीडबैक चाह रहे हैं. तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छी इंडिकेशन है कि अगर वो ब्रॉडर करते हैं फिर हम प्रॉपर्ली एंगेज कर सकेंगे उसमें. जिससे मैंने कल कहा था ना कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम देयर साइड एंड वी शुड बेसिकली एंगेज विद देम. फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसको 2 3 4 वो स्टेप्स में लेके जाएंगे सारे प्रोसेस. मेरे ख्याल में मैंने आमना को कहा था कि मुझे कुछ बताइएगा आपके टॉपिक क्या है पहले, क्योंकि अगर पहले से पता चल जाता ना तो थोड़ा इंसान देख लेता है गूगल पे जाके उस पे. मैसेज नहीं, ये तो मैं सदर से बात कर रहा था, पीटीए की बात कर रहा था. वो सोशल मीडिया रूल जो भी आपसे बात कर रहा था थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी ना, सोशल मीडिया के रेगुलेशन के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी. तो गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया कि जी जब तक कंसल्टेशन नहीं होगी सिविल सोसाइटी से उस टाइम तक उनको नाफिज नहीं करेंगे. अभी तो हम वो अभी अब थोड़ी देर में आपसे शेयर करते हैं कि पीका के तहत साइबर क्राइम के हवाले से डिस्कशन होनी है जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट में जो खामियां हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम में जो खामी उसके ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए और पार्लियामेंट अपना रोल प्ले करे और उसकी रेलेवेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या है, एसडीजी फ्रेमवर्क के साथ रेलेवेंस है. तो इस पे जनरली हम इस बार डिस्कशन करेंगे. डॉक्टर शाजिया सोबिया साहिबा ने भी ज्वाइन कर लिया. वेलकम मैडम. डॉक्टर शाजिया साहिबा को वेलकम करता हूँ जी. जी थैंक यू. आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मैडम, बिल्कुल ठीक आ रही है. फतियाना साहब, अस्सलाम वालेकुम सबको. वालेकुम अस्सलाम. शाजिया क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र. सॉरी मैं थोड़ा लेट आ गई क्योंकि मैं कहीं बाहर निकली हुई थी, तो अभी वापस पहुंची हूँ, तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से ज्वाइन कर लूँ आप लोगों को. ठीक है, यू आर वेल इन टाइम. अल्हम्दुलिल्लाह. सब ने ज्वाइन कर लिया हमें जी. जी रियाज साहब आपने ज्वाइन कर लिया, आपको आवाज आ रही है हमारी सर? जी अस्सलाम वालेकुम. रियाज साहब आपकी इजाजत है हम स्टार्ट करें सर? हाँ जी किताब जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. आज के इस इम्पोर्टेंट मीटिंग में मैं पार्लियामेंटेरियंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से और टास्क फोर्स ऑन एससी की तरफ से तमाम ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स को खुश आमदीद कहता हूँ. आज की मीटिंग को चेयर कर रहे हैं पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स ऑन एससी के रियाज फताना साहब और पीसीएचआर के भी चेयर रियाज साहब हैं. तो वो आज की इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं. उनकी इजाजत से हम स्टार्ट करते हैं आज की इस मीटिंग का. इसमें हमने सोसाइटी के भी कुछ 3-4 एक्सपर्ट्स को बुलाया है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है. हमारी जो डिस्कशन फोकस होगी दैट वुड बी ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एसडीजी 1610 क्या कहता है, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स. इस पूरे फ्रेमवर्क में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर कैसे उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि सिटीजन की जो इंडिविजुअल उनकी जो राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्ट हो, और उसके अलावा जो लॉ की जो इनेक्टमेंट का पर्पस है वो भी हल हो जाए. उसे कैसे बैलेंस क्रिएट किया जाए. जनरली आज हमारी ये डिस्कशन होगी. उसमें देखें, उसमें एक गुजारिश ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है. हर सिटीजन के प्रोटेक्ट करता है. साथ उसमें वर्ड है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड एज वेल. और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है क्या होनी चाहिए, दैट इज प्योरली ए पार्लियामेंट्री जॉब. पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए. तो सम हमने देखा है कि वो यहाँ पे प्रैक्टिस ऐसी रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जब उसको इंटरप्रेट किया जाता है तो ज़्यादा
जुडिशरी में ले जाते हैं और ज़्यादा फिर उसमें ले जाते हैं, इदारे खुद अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं उसमें। उस वेगनेस की वजह से फिर शहरियों के खिलाफ भी कानून इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें पीका में अगर आप देखें, पीका में 2 किस्म के जराइम उन्होंने शो किए हुए हैं इसमें। अभी इस पे बात करेंगे, सदा हमारे साथ MMFD से। कुछ कॉग्निजेबल है, कुछ नॉन कॉग्निजेबल है। जो टेररिज्म के मसाइल हैं वो उन्होंने कॉग्निजेबल कर दिए, जो सिटीजन के हवाले से नॉन कॉग्निजेबल कर दिए हैं। अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो इसमें शहरियों को अपनी कंप्लेंट्स है इस लॉ के हवाले से कि जी जो आम शहरी है वो जब जाता है तो उसकी शिकायत के ऊपर 1 साल फैसला नहीं होता है इसके ऊपर। अच्छा, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हैं, उसके इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी के इश्यूज हैं, उनके रूल्स हैं, उनके नहीं बने, स्टाफ के जो इसके तहत जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है FIA की, उनका साइबर क्राइम विंग है, वो काम नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरी तरफ ये शिकायत भी है कि जो लोग पॉलिटिकल व्यूज रखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और उनको साइबर टेररिज्म की जो रेलेवेंट क्लासेस है, सेक्शन 10 है या 21 है, 22 है इस लॉ की, उनके खिलाफ ये लॉ प्रोएक्टिवली बहुत ज्यादा स्पीड में काम करता है और बगैर किसी सेफ गार्ड के उनको ये हैरेस करते हैं। शाहजेब जिलानी एक जर्नलिस्ट है, उनका केस आप लोगों के इल्म में होगा कराची से, और ऐसे बेशुमार केसेस है। कुछ जर्नलिस्टों के खिलाफ FIA ने नोटिस इशू किए थे। तो इस लॉ में नेसेसरीली लाजमी तौर पर बेशुमार फ्लॉज हैं। कुछ दिन पहले हमने सेनेट के जो दोस्तों से हमने मीटिंग की थी, सेनेट की लॉ जस्टिस कमेटी के लोग थे और दूसरे लोग थे IT के, तो उन्होंने एग्री किया था कि इस लॉज में जो खामियां हैं उसको दूर किया जाना चाहिए। और लॉज होते भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो करनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन को ज़्यादा उसको स्पीड में लेके चलना चाहिए। तो आज और फिर देखें SDG कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा SDG 16 जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा 16, वो कहते हैं पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग नेशन। 16 जो टारगेट है वो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के हवाले से, RTA के हवाले से है। अच्छा, उसके साथ डायरेक्टली लिंक है ये पीका के जो साइबर क्राइम की जो हमारे रेलेवेंस चीजें हैं। उसके अलावा फिर हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, हमारी इंटरनेशनल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, जो कॉवेनेंट सिविल पॉलिटिकल राइट्स है, पाकिस्तान ने उसको रेटिफाई किया। उसके तहत भी एज ए स्टेट वी आर ऑब्लाइज्ड कि हम वो मेजर्स लें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यहाँ पे शहरियों को इंश्योर कर सके। तो ऐसे कोई भी लॉज या पॉलिसीज जो किसी भी तरीके से शहरियों के इस जनरल राइट को या फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करते हैं तो उसके ऊपर हमें रिव्यू की जरूरत पड़ती है। तो ये जनरल सा कॉन्टेक्स्ट था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सदफ खान से, मीडिया मैटर फॉर डेमोक्रेसी से, कि वो ये हमने एक्टिविटी स्टार्ट की हुई है, हमने यूनेस्को की सपोर्ट के साथ उनके लोगों में मौजूद है। उनकी हमने पहले भी एक सीरीज ऑफ FTDs कराई है हमने। उसमें हमने पहले भी कुछ अर्से पहले रियासत में भी ज्वाइन किया था, एक मीटिंग में पर्सनल मीटिंग थी, फिर सेनेटर के साथ हमने मीटिंग की है, फिर हमने कुछ मीटिंग की थी जिसमें हमने PFU को इन्वॉल्व किया था और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे उसमें, वो लोग आए थे। इसी तरह फिर इस्लामाबाद में मीडिया पर्सन के साथ हमने की थी। तो खासी ये एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी, आज इसकी 6वीं या 7वीं गालबन इसकी मीटिंग है हमारी। और उसके बाद हम एक टेक्निकल रिव्यू आज की डिस्कशन के बाद आगे ये होगा कि आप लोगों की आरा की और तजावीज़ की रोशनी में आज की जो डिस्कशन होगी, हम इसकी अगली एक मीटिंग करेंगे, टेक्निकल मीटिंग करेंगे, जिसमें हम जो सजेशंस आपकी तरफ से आएंगी, जो सेनेट की तरफ से आ चुकी हैं, उसकी रोशनी में इस लॉ में जो टेक्निकल अमेंडमेंट्स हैं वो हम सजेस्ट करेंगे और फिर हम आपके साथ एक दोबारा सेशन करेंगे ताकि उसको आगे कैसे लेके चला जाए। तो अभी आई वुड रिक्वेस्ट फुदैन साहब की इजाज़त के साथ सदफ खान से कि वो एक ब्रीफ सी प्रेजेंटेशन दें रिगार्डिंग मेजर इश्यूज विद द पीका इन लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू एवरीवन। जो पीका में इश्यूज हैं एक्चुअली वो इतने ज़्यादा हैं कि यूजुअली हमें प्रेजेंटेशंस करने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, बट आज आई एम गोइंग टू ट्राई कि जो 5-6 बिल्कुल की इश्यूज हैं उनको मैं हाईलाइट कर दूं। चौधरी साहब ने आपको बैकग्राउंड बताया, 2016 में ये बिल पास हुआ, लेकिन आपको पता है कि वो 2 साल पहले से इसके ड्राफ्ट्स आ रहे थे, मुख्तलिफ ड्राफ्ट्स आए जिसके ऊपर बहुत सारे की कंसर्न्स थे, सिविल सोसाइटी ने शेयर किए। अनफॉर्चुनेटली जो फाइनल बिल मंजूर हुआ, जो एक्ट बना, उसके अंदर उनमें से बहुत सारे कंसर्न्स एड्रेस नहीं हुए। उसमें जो बहुत बड़ा सबसे मेजर मसला है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है। लाइक शफीक साहब वाज एक्सप्लेनिंग, पीका के अंदर जो एक्सप्रेशन और इंफॉर्मेशन एक्सेस है उसको बहुत सारे दीगर जराइम से लिंक कर दिया गया है, जो ग्लोबल जुरिस्डिक्शन में हमें उस तरह से नहीं नजर आता।
फॉर एग्जांपल जो साइबर टेररिज्म का चार्ज है, ग्लोबली इट्स सीन एज समथिंग जिससे एक्चुअल टेररिज्म एक्ट्स इंसाइट हो सके, लेकिन पीका में साइबर टेररिज्म जिस तरह से डिफाइन की गई है, इट्स लिंक्ड टू इंफॉर्मेशन एक्सेस, unauthorized information access, obviously, and then expression like glorification of criminals or terrorists, जो direct terrorism का चार्ज हमें किसी और jurisdiction में उस तरह से नजर नहीं आता. एक बहुत मेजर कंसर्न ये है कि लॉ के अंदर ऑनलाइन डेफेमेशन को क्रिमिनलाइज किया गया है, और इसी वो जो सेक्शन है जिसके अंदर ऑनलाइन डेफेमेशन को क्रिमिनलाइज किया गया है, एक तो उसकी पेनल्टीज जो दीगर डेफेमेशन के अराउंड हमारी लेजिस्लेशन है, डेफेमेशन एक्ट है, पीपीसी के अंदर सेक्शन 499 500 है, उससे उसकी पेनल्टीज डिफर करती हैं, बट इसके अलावा जो सेफ गार्ड्स प्रोवाइड होने चाहिए जब एक लॉ क्रिमिनलाइज कर रहा है, वो सेफ गार्ड्स फ्री एक्सप्रेशन के फराहम नहीं किए गए. सेक्शन 37 इज द सेक्शन दैट इज प्राइमरली यूज्ड टू डिफाइन के इलीगल ऑनलाइन कंटेंट क्या है. इट्स अ सेक्शन डीलिंग विद इलीगल ऑनलाइन कंटेंट, एंड उस सेक्शन के अंदर जो बहुत मेजर इशू है वो एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेशन है, क्योंकि वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जैक्ट फ्रेमिंग को कॉपी कर लेता है अपने अंदर. So you will see the same framing, the same word. तो आर्टिकल 19 इन द कॉन्स्टिट्यूशन यूज हुए हैं, सेक्शन 37 में कॉपी हो गए हैं, यानी वो लॉ उन सारी रिस्ट्रिक्शंस की, उन लिमिटेशंस की फर्दर एक्सप्लेनेशन या डीकंस्ट्रक्शन फराहम नहीं करता. अब ऑब्वियसली जो सेक्शन 37 की इम्प्लीमेंटेशन है वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास है, विच अगेन गोज बियॉन्ड द ओरिजिनल मैंडेट ऑफ द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी. मगर मोर कंसर्निंगली जो एक ये रेगुलेटरी बॉडी है, पीटीए है, उसके पास हम टेक्निकली ये पावर रेस्ट कर रहे हैं कि वो डिसाइड करे कि व्हाट गोज अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज डिसेंट, व्हाट इज मॉरल, मोरालिटी की जजमेंट्स करना, फ्रेंडली स्टेट्स के साथ हमारे किन चीज़ों से इफेक्ट हो सकता है उनको वो करना, डिसाइड करना, ये सारी चीज़ों के डिसीजन जो टेक्निकली किसी लॉ के थ्रू पार्लियामेंट को डिफाइन करना चाहिए कि इन फ्रेम्स में क्या आता है, वो एक एग्जीक्यूटिव पब्लिक इंस्टीट्यूशन के साथ रेस्ट कर दिया गया है. उसमें ज़्यादा मेजर बात कंसर्निंग ये है कि इस सारी चीज़ों के लिए कोई ओवरसाइट मैकेनिज्म नहीं किया गया. Originally in the law, PTA was supposed to submit a report to the parliament as well. लेकिन हमें कहीं पे भी वो क्या फ्रेमवर्क था जिसके तहत ये डिसीजंस लिए गए हैं, पिछले 4 साल हो गए हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुए, वी स्टिल हैव नो क्लैरिटी फ्रॉम पीटीए कि वो एग्जैक्टली क्या फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, वो कौन सी डेफिनेशंस हैं, वो कौन सी एग्जैक्टली फ्रेम है जिसको यूज करते हुए ये डिसीजंस कर रहे हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर एडहॉक डिसीजन मेकिंग, यानी जो इंडिविजुअल उस वक्त बैठा हुआ मॉनिटर कर रहा है उसको कोई चीज पसंद आती है तो वो उसको रहने दे, और अगर नहीं पसंद आती तो वो सॉरी. पीटीए को इसके तहत बहुत सारे इदारों ने आरटीआई रिक्वेस्ट भी भेजी, बट उनकी तरफ से अगेन ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल ओवरसाइट कंटेंट रेगुलेशन के हवाले से कंप्लीटली मिसिंग है. देन द जुरिसडिक्शन जो है इस लॉ की, स्पेशली इंटरनेट कंपनीज के ऊपर, वो प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं की गई, और इस वेगनेस की वजह से ये चांस मौजूद है कि जो डिफरेंट कंपनीज हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उनके साथ डील करने में ये अपनी पावर को एक्सीड करें. जो हमने देखा है कि जब सोशल मीडिया रूल्स डिफाइन किए गए हैं, उसके अंदर हमें ये इसकी मैनिफेस्टेशन नजर आई है कि बहुत सारी जगहों पर इदारे ने, पीटीए ने या पीटीओ को वो इख्तियारात देने की कोशिश की गई है जो टेक्निकली लॉ के अंदर उनका पार्ट नहीं बनता. देन देयर आर सर्टेन सेक्शंस जिनके अंदर दीगर जो लॉज हैं, जिनके अंदर कुछ ना कुछ प्रोटेक्शंस मिल रहा है, उनसे हमें डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है. उनमें सबसे मेजर जो इशू है वो डेटा एक्विजिशन का है. जिस चैप्टर के अंदर पीका की इन्वेस्टिगेटिव पावर्स या इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी की एक्सरसाइज के हवाले से हमें डिटेल्स मिलती हैं, वहाँ पे एक्सपेडाइटेड डेटा एक्विजिशन के कुछ सेक्शंस मौजूद हैं और रियल टाइम सर्वेलेंस के या रियल टाइम मॉनिटरिंग के कुछ सेक्शंस मौजूद हैं, जिसके अंदर एक डिफरेंट तरीक़ेकार डिफाइन किया गया है इन चीज़ों का.
compared to the Fair Trial Act. So अगर मैं real time monitoring की बात करूँ, it's like आपका phone bug करके या आपकी conversations के अंदर live, so it's a very invasive procedure. Fair Trial Act में ये provision है कि अगर किसी भी even suspect की, even terrorism suspect की अगर real time surveillance खींच जाती है तो उसके लिए आपको हाई कोर्ट से जाके एक वारंट लेना पड़ता है, उसकी एक टाइम लिमिटेशन होती है. पीका के अंदर ये जो प्रोटेक्शंस थी कि ये इतनी इन्वेसिव पावर इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज इररिस्पॉन्सिबली ना एक्सरसाइज करें, वो रेस्ट कर दी गई हैं एक सेशन कोर्ट के ऊपर, और उनको ये इख्तियार भी दिया गया है कि अगर वो समझते हैं कि कुछ अर्जेंसी है तो वो वारंट के बगैर डेटा एक्वायर कर लें या डिवाइसेस सीज कर लें, और फिर इन रेट्रोस्पेक्ट वो परमिशंस ले लें या अपना वारंट कोर्ट से परमिशन ले लें. सो दैट ऑब्वियसली क्रिएट्स अ रूम फॉर अब्यूज ऑफ पावर का उसमें बहुत ज़्यादा इख्तियार मौजूद है. देन डेटा रिटेंशन की इसके अंदर एक क्लॉज मौजूद है जो रिक्वायर करती है तमाम जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कि वो कस्टमर्स का, अपने कंज्यूमर्स का डेटा या ना आपका और मेरा डेटा रिटेन करें अपने पास 2 साल तक, और वो प्रोवाइड कर सकेंगे किसी भी इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी को या सिक्योरिटी एजेंसीज को ऑन रिक्वायरमेंट. और इसका भी एक बाकायदा तरीक़ेकार डिफाइन नहीं किया गया. तो जो डेटा है उसका मिसयूज, उसका लीक होना, ये सारी चीज़ों के हवाले से हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती. जनरली ग्लोबली जो ट्रेंड है वो ये है कि जब इस तरह की लेजिस्लेशंस बनाई जाती हैं, जब इस तरह की पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की जाती हैं मुल्कों में जहाँ सिटीजन्स के डेटा की एक्विजिशन की बात हो, तो उससे पहले एक डेटा प्रोटेक्शन की लेजिस्लेशन बनाई जाती है. अनफॉर्चुनेटली डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन इज स्टिल मिसिंग इन पाकिस्तान. उस पर काम शुरू हुआ था और अभी मिनिस्ट्री ने, IT मिनिस्ट्री ने अपना 3rd ड्राफ्ट रखा हुआ है कंसल्टेशन के लिए अपनी वेबसाइट पे, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज मौजूद हैं. I'll quickly go through the recommendations जो हम देते रहे हैं amendments के हवाले से. एक तो ये है कि जो definitions वेग हैं उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. सेक्शन 37 को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है क्योंकि उसी की वजह से जो ऑनलाइन कंटेंट है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको जो थ्रेट्स वो मौजूद हैं. अनचेक्ड अथॉरिटी है PTA के पास जुडिशियल ओवरसाइट या पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के बगैर. देन जो कॉन्ट्रडिक्शन है दीगर लॉज के साथ उनको रिमूव करने की ज़रूरत है. देन ऑब्वियसली जो एक बहुत बड़ा मसला रहा है जो PTA के साथ मैंने जो बताया कि फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है, वो रूल्स डिफाइन करने की ज़रूरत है. अनफॉर्चुनेटली इवन दो कोर्ट ने PTA को भी ऑर्डर किया था AWP के केस में कि ये रूल्स बाकायदा डिफाइन किए जाएं. हमने एक बहुत अजीब व गरीब सिनेरियो बिल्ड होता हुआ देखा जब वो रूल्स कैबिनेट की तरफ से नोटिफाई किए गए विदाउट PTA's इन्वॉल्वमेंट एंड विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस. और वो जो रूल्स डिफाइन किए गए सिटीजन प्रोटेक्शन रूल जिनका तस्करा चौधरी साहब शुरू में भी कर रहे थे, वो PTA जो पीका है, जो एक्ट है, पेरेंट एक्ट है, उसके अंदर दिए गए इख्तियारात से कहीं बाहर जाकर और एट टाइम्स इन कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द पेरेंट एक्ट वो पावर्स असाइन करते हैं. और वो पावर्स असाइन करते हैं एक नेशनल कोऑर्डिनेटर को जो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और वो नेशनल कोऑर्डिनेटर इस पीका के अंदर जो भी कंटेंट रेगुलेशन के हवाले से सेक्शंस मौजूद हैं उनको रीडिफाइन करने, एट टाइम्स उनको चैलेंज करने और उनकी कॉन्ट्रडिक्शन में फैसले देने का इख्तियार रखता है. तो दीज आर द की कंसर्न्स. अगर इससे ज़्यादा कोई डिटेल आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़. बहुत जी सदफ, बहुत शुक्रिया. थैंक यू मच for giving a brief overview of the law and the issues within it. और जिस आपने सही कहा contradiction है दूसरे laws के साथ, PTA का रोल भी क्लियर इसमें नहीं है, पीका का रोल, FA का रोल, FA और PTA के आपस में कोऑर्डिनेशन के मसाइल नहीं है when we talk with them. उसके अलावा इसमें साइबर टेररिज्म को साइबर क्राइम के साथ मिक्स कर दिया गया है, हालांकि एंटी टेररिज्म एक्ट मौजूद है. आपने जो भी टेररिज्म इश्यूज है उसमें डाले जा सकते हैं ताकि इसके तहत आम शहरियों के मसाइल फिर सेफ गार्ड नहीं है, ओवरसाइट नहीं है, सब इसमें इश्यूज हैं साइबर क्राइम के हवाले से. तो इसके बाद मैं रियाज सताना साहब से गुजारिश करूंगा फॉर हिज ओपनिंग रिमार्क्स, और उसके बाद हम फिर ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस से जाएंगे टू स्टार्ट द डिस्कशन. ऑनरेबल चेयरमैन हमारे जनाब रियाज सताना साहब. जनाब सताना साहब. शुक्रिया शफीक चौधरी साहब. अस्सलाम वालेकुम सब पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से सबको नेक तमन्नाओं का इज़हार. गुजारिश ये कि बहुत बर वक्त आपने ये आज जूम मीटिंग की है और इसमें काफ़ी काम की गुंजाइश है. अभी इशू हमारे सामने है सस्टेनेबल गोल 16 और उसका जो
गोल स्पेशली टारगेट है 10, उस पर हम आज बात कर रहे हैं। इसमें साइबर टेररिज्म और साइबर क्राइम को हमने मिक्सअप कर दिया है। हुकूमत से यही गलती हुई है कि उन्होंने पीका एक्ट भी जो बनाया है 2016 में, उस पर भी प्रॉपर अमल दरामद ना हो सका। असल ज़रूरत इस बात की है कि हमें दोबारा थिंक करना होगा कि जो मजहबी इंतहा पसंदी है या टेररिज्म है, रिलीजियस टेररिज्म या कोई भी किसी किस्म का भी टेररिज्म हो, उनके मतलब लॉज और रेगुलर दूसरा जो करेक्टर असैसिनेशन है, उसमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं उस पर जो साइबर क्राइम को मिक्सअप कर दिया गया है, दोनों को अलग अलग किया जाए। लॉ ही दोनों सेपरेट होना चाहिए और उन पर अमल दरामद भी दोनों का सेपरेट होना चाहिए। इस वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तो जो मौजूदा लॉ है इसमें काफ़ी बहाम है, काफ़ी कन्फ्यूजन है, इस लॉ को इम्प्रूव होना चाहिए। नंबर 2, इसमें दूसरी बड़ी जो इशू है वो है कैपेसिटी ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनका साइबर क्राइम विंग इंतहाई कमज़ोर विंग है, उसमें प्रोफेशनल्स की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, उसमें टेक्नोक्रेट्स की कमी है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कमिटमेंट की भी कमी है, क्योंकि वो काम प्रॉपर कर ही नहीं रहे। कंप्लेंट आती है 8-8 10 महीने पूछता ही कोई नहीं है, जब तक मामला वैसे ही डिफ्यूज हो जाता है। और इसके साथ साथ उनकी कैपेसिटी को भी बिल्ड करना होगा, उनकी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना होगा, सेफ गार्ड जो है उनको देखना होगा, और इसके साथ लाइफ जो राइट ऑफ प्राइवेसी है उसको भी इंश्योर करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ है उसको भी आप उसमें घुस जाएं और उसकी प्राइवेसी भी है, जिससे अगर कोई दूसरा बंदा हार्म नहीं हो रहा, किसी की करेक्टर असैसिनेशन नहीं हो रही, वैसे गर्दी नहीं आ रही, उसको अपना आपस में कोई चैट या बाकी चीज़ें कर रहे हैं तो उसमें इंटरप्ट नहीं चाहिए, इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि अभी तक FIA ने इसके प्रॉपर रूल्स भी नहीं बनाए। रूल्स बनाना इनका मैंडेट था, इसलिए तो समझते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है, इसको असेंबली में भी मैंने तकरीबन कोई 100+ बिल पेश किए हैं, उसकी काफ़ी मज़ाक़त हुई है मिनिस्ट्री की तरफ से। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वो बनाते ही नहीं है, काम ही नहीं करते, और उसके साथ पोस्ट लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी का प्रोसेस भी हमारे मुल्क में रुका हुआ है, उस पर भी हमें गौर करना होगा। तो पोस्ट लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी के तहत ही हमें पीका एक्ट 2016 को और साइबर क्राइम को और साइबर टेररिज्म को बाइफरकेट और अलग अलग इम्प्रूव करना होगा। इस सिलसिले में आज से पहले भी हमारी 2 सेशन हुए हैं, एक अपने सेक्रेटरीट में, पिप्स में, और आज हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, इसको आगे भी बढ़ाएंगे। इससे पहले भी जूम मीटिंग हो चुकी है, तो मैं चाहूँगा कि लंबी बात ना करूँ क्योंकि सबका टाइम कीमती है, और सारे ऑनरेबल मेंबर्स अपनी भी राय दें कि इसको कंक्लूड करें। शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सम अप कर दिया चीज़ों को बेसिकली खासी हद तक कि लॉज के अंदर जो टेक्निकल डेफिनेशन के इशूज़ हैं, सजाओं के इशूज़ हैं, कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव के इशूज़ हैं, तो सदफ ने कहा, आपने ये भी बता दिया कि टेररिज्म और क्राइम को मिक्सअप करने से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी भी आपने बात कर दी है, और नए इसके तहत जो रूल्स हैं, वेग रूल्स बनाए जा रहे हैं, उस वेगनेस की वजह से जो इसके मिसयूज का खतरा बढ़ गया, ये मिसयूज हो भी रहा। तो ये सारी इश्यूज में थैंक यू मच फॉर रीअफर्मिंग योर सपोर्ट। अब मैं इसके बाद हम इसको ओपन करते हैं, तो मैं इसमें डॉक्टर शाजिद सबा से सोबिया साहब का पहले सबसे पहले आपने हाथ रेज किया था, तो डॉक्टर शाजिद साहब, उसके बाद बाकी जो लोग इसमें बात करना चाहें तो वो उसमें बात करेंगे। और इन द मीन टाइम रजा अली साहब PGN से उन्होंने हमें ज्वाइन किया। रजा साहब, थैंक यू मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी डॉक्टर शाजिद सोबिया साहब। जी थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू। सदफ ने बहुत अच्छी तरह से सारा जो लॉ है, जो जितनी भी चीजें हैं, सारी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब की हैं, और फतेहाना साहब ने उसको और ज्यादा किया है, ऑन किया है कि इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अभी मेरी जो सबसे मेन चीज है वो ये बात मैं करना चाहूंगी कि सदफ ने कही थी कि सिक्योरिटी ऑफ नेशन, मोरल और इमोरल जो सपोर्ट है वो किस तरह से हम करने चाहिए, और जो पार्लियामेंटेरियन को या पार्लियामेंट को बाईपास करके जो चीजें हो रही हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस आनी चाहिए। उसके बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी सजेशंस होती हैं, कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को नहीं लगती, लेकिन जो चीज फेवर ऑफ नेशन होगी वो तो नेचुरली वो ओन कर ली जाएगी। तो ये चीजें होनी चाहिए। अब आप देखें कि जो लास्ट एक मीटिंग हमने अटेंड की थी उसमें भी हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन की, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से होती है कि मेरे जो व्यूज है, मैं किसी से बोलती नहीं हूँ तो वो व्यूज वहीं के वहीं रह जाते हैं, और दूसरे जो सोच रहे हैं वो वहीं रह जाते हैं। सजेशंस कोऑर्डिनेशन की वजह से
होती नहीं, सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो अभी आप देखेंगे साइबर क्राइम की बात हो रही थी, तो अभी रिसेंटली मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के कैरेक्टर असैसिनेशंस हो रही हैं और उसके लिए FIA में कितनी एप्लीकेशंस गई हुई हैं, और हमारी माशाल्लाह से सारी पार्लियामेंटेरियन जो है वुमेन पार्लियामेंटेरियन PTI से ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने। तो मुझे ये बता दें कि FIA क्यों नहीं उस पर कोई काम कर रहा है, और वो भी अगर कोई कैरेक्टर असैसिनेशन कर भी रही हैं तो वो फॉरेनर हैं, और फॉरेनर को इतनी इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, कौन वो उनको इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन उनको इतनी सपोर्ट कर रहा है कि वो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की उस लीडर के लिए बात कर रही है जो मुस्लिम ममालिक की पहली खातून वजीर आजम थी और पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम थी, उनके लिए वो बात कर रही है। इस वक्त रियासत कहाँ है, इस वक्त लॉ कहाँ है, इस वक्त PTA कहाँ है, FIA कहाँ है? तो क्यों नहीं उस चीज को ऑन किया जा रहा है, उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? मेरा तो सबसे मेन इशू यही है। और ये चीजें हमारी जो वुमेन पार्लियामेंटेरियन कोकस है वहां से भी रेज होनी चाहिए, और यही चीज जो है हमारे जो स्टेटस ऑफ वुमेन है ह्यूमन राइट्स में वहां से भी रेज होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी सिर्फ एक पार्टी की लीडर नहीं थी, वो पाकिस्तान का एक प्राउड थी। तो उनका अगर जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, तो कहते हैं कि लोगों की अगर बुराई हो भी तो वो सामने नहीं लाई जाए, उनकी तो बहुत सारी अच्छाइयां थी। एक फॉरेनर आके आपके मुल्क में आके आपके एक लीडर को बुरा भला बोल रहा है, लीडर ना समझे, आप उनको प्राइम मिनिस्टर समझे, एक खातून समझ के उनको रिस्पेक्ट दे, तो आप लोग उनको इस वक्त क्या FIA सो रहा है, क्या हुकूमत सो रही है, रियासत कहाँ है इस वक्त? कोई कुछ नहीं कह रहा है। ये कोई तरीका नहीं होता है। आप अगर बात कर रहे हैं तो इसमें इस चीज पे भी जरूर कोई ना कोई वॉइस रेज होनी चाहिए। इस फोरम पे अगर बात हो रही है तो जितनी भी वुमेन पार्लियामेंटेरियन हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पार्टी से अबव द पार्टी लाइन, यहाँ पर एक बात हो रही है वुमेन की रिस्पेक्ट की, तो आप लोग प्लीज वॉइस रेज करें। और जो हमारे ये यहाँ पे हम लोग SDG सेक्रेटेरिएट के थ्रू जो हम लोग बात कर रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से भी कोई एक इस तरह से कोई बात होनी चाहिए कि एटलीस्ट वो उसको एक शट अप कॉल तो दी जाए। जो एक फॉरेनर है, बाहर से लोग आके हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं, हमारे लोगों में इतना है कि वो बाहर के मुल्क में जाकर किसी के लिए कुछ बोल सके। हम लोगों के अंदर तो इतना करेज नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ भी बुरा बोल सके। आपस में लड़ेंगे लेकिन दूसरों को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अपने लोगों की बेइज्जती होते हुए देख सकते हैं हम। इस चीज पे मुझे ये है कि आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ सुनना है, आप लोगों की तरफ से मुझे इस चीज पे एक्शन चाहिए, और ये यहाँ से और वुमेन पार्लियामेंटेरियन कोकस और स्टेटस ऑफ वुमेन की तरफ से भी यहाँ से जाना चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स, क्योंकि हमारी जो मिनिस्टर हैं वो भी खुद खातून हैं, तो यहाँ से हमारे इस फ्लोर से कुछ ना कुछ होना चाहिए। और फतियाना साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट इस चीज चेयरमैन होते हुए आप इस चीज पे जरूर एक्शन लें। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर शाजिद साहबा। बिल्कुल, दिस इज अक्रॉस द बोर्ड, कैरेक्टर एसोसिएशन किसी की भी उसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर होल्डिंग दिस फोरम to look into the lacunas of the legal framework and institutional mechanism which has been put in place to check these sort of cyber character assassination and cyber crimes। अगर देखें यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क इफेक्टिव होता और ये चीजें तो ये उसको इफेक्टिवली चेक किया जा सकता था। आपकी इस बात से, इस केस स्टडी से तो हमारा केस मजबूत होता है कि हमारा जो ऑलरेडी लीगल मैकेनिज्म मौजूद है वो उसमें गलतियां मौजूद है, और उसमें इस किस्म के केसेस को करने के बजाय ज़्यादा टेररिज्म में फोकस चलेगा, जिस वजह से जो शहरियों के हकूक़ है वो मुतासर हो रहे हैं। मैं आपकी बात को सपोर्ट करता हूँ, और इसमें बिल्कुल कोई भी एक ऑनरेबल मेंबर हो, कोई इंफरादी या मोहतरमा तो एक बड़ी शख्सियत थी, और उनके हवाले से किसी को भी इजाज़त नहीं, किसी एक खातून, ह्यूमन डिग्निटी, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक आम खातून हो, चाहे एक आम सिटीजन हो, हमारे चौधरी साहब यहाँ पे ये बात आती है कि क्या हम घर में भी सिक्योर नहीं है? पाकिस्तान तो हमारा घर है। अगर बाहर से एक बंदा आके या बंदी आके, फॉरेनर होके, वो आकर हमें घर में आकर इस तरह से बुरा भला करेगी, हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन करेगी, तो हमारे फिर घर में भी सिक्योरिटी नहीं है। कहाँ है लॉ और कहाँ है कानून, कहाँ है रियासत? नहीं अर्ज किया ना, इसीलिए हम जैसे आज हम डिस्कशन करेंगे कानून, जब रियासत से हम करेंगे, रेप अप करेंगे, तो इस पर लाजमी अपने इस मौके पर राय देंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो नेक्स्ट हमारे साथ नौरीन इब्राहिम साहब ने सबसे पहले ज्वाइन किया था, मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि वो अपने बात से स्टार्ट करें इसके ऊपर, उसके बाद बाकी ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बारी बारी, उसके बाद हमारे पास हमने 2-3 सिविल सोसाइटी के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे फिर हम अपनी बात करेंगे, जिसमें रजा साहब है, फरकंदा कोकब है और मलिया है। जी मैडम नौरीन इब्राहिम साहब।
جی بہت شکریہ چودھری صاحب, اور سلام once again to everyone who have joined this meeting. سب سے پہلے تو ریاض فتحانہ صاحب, میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو پہ یہ ایک ڈسکشن بلائی ہے, اور صدف نے بڑا اچھا بریف بھی دیا ہے, آپ نے بھی اس کو بڑا اچھے طریقے سے سم اپ کر دیا ہے. صوبیہ کی بات بھی میں نے سنی, لیکن میں یہاں پر سب سے پہلے ایک یہ مطلب میں یہ بتانا مطلب سمجھنا چاہتی ہوں کہ جو ہم نے آرٹیکل 19 ہے ہمارا, کہ ہر سٹیزن کو اظہار رائے اور کی آزادی ہے, وہ اپنے خیالات, احساسات کو, تھاٹس کو شیئر کر سکتا ہے, ان کا اظہار کر سکتا ہے, ان کو ایکسپریس کر سکتا ہے. پھر وہاں پر تھوڑی سی ریسٹرکشنز بھی لگائی گئی ہیں آرٹیکل 19 میں, فریڈم پر کچھ ریسٹرکشنز بھی لگائی گئی ہیں. مثلا ایسا نہیں ہے کہ آپ فریڈم آف ریسٹرکشن کے نام پہ اسلام کے اسٹیبلش جو پرنسپلز ہیں ان کے اوپر مذاق اڑانا شروع کر دیں, یا کوئی ایسی چیزیں جو ڈائریکٹلی ہماری سیکیورٹی کے ساتھ لنکڈ ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنا شروع ہو جائیں جس سے ہماری سیکیورٹی کو تھریٹ ہو. تو جو ہماری فریڈم ہے محدود کیا گیا ہے آرٹیکل 19 میں. ہمیں فریڈم دی بھی گئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری فریڈم کو محدود بھی کیا گیا. اب یہ بہت بڑی ایک ڈیبیٹ ہے جی آئی تھنک یہاں پر کہ فری اسپیچ شوڈ ہیو لمیٹیشنز اور ناٹ, کیونکہ فریڈم آف اسپیچ کی لمیٹیشنز مطلب ہونی چاہیے یا نہیں, مطلب جس کا جو دل کرے وہ اس کا اظہار کرے, یا اس کی لمیٹیشنز ہیں. ہم ان کو مطلب ڈیفائن کیسے کریں, اسی لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. لیکن جیسے کہ کانسٹیٹیوشن میں کہا گیا ہے کہ جو بھی اسٹیبلشڈ اسلام کے جتنے بھی فنڈامنٹلز ہیں ان کو آپ اس طرح ڈسکس نہیں کر سکتے. اور میں اب یہ انٹرپریٹیشنز, میرا مین مقصد یہ ہے کہ اس کو جو انٹرپریٹ کرے گا نا وہ کس کرائٹیریا پہ کرے گا. یہ جو آپ نے PECA جو پیکا بنایا ہے, جب ہم نے یہ ایکٹ پاس کیا ہے اس میں جو اتھارٹی آپ نے PTA کو دی ہے, اب ساری اس بحث کا جو مجھے سمجھ آئی ہے مقصد یہ ہے کہ PTA کس طرح ڈیفائن کرے گا کہ یہ جو فلاں اسپیچ ہوئی ہے یا جو بھی چیز سوشل میڈیا پہ آئی ہے وہ کس اسکیل کے تحت ہم اس کو غلط یا صحیح ثابت کریں گے. I hope I'm right in expressing myself, جو مجھے سمجھ آئی ہے. So I think اس کو ہمیں فردر اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. اور جو میں نے آپ کا یہ 25 پیجز کا یہ جو ایکٹ ہے یہ میں نے دیکھا بھی تھا, تو یہاں پہ بہت سارے لوپ ہولز ہیں, and we need to discuss it further. اور اس کو میرے خیال سے کورٹ میں جانا چاہیے, because the court needs to decide کہ کس طرح اس کسی بھی اسپیچ کو یا کوئی بھی جو بات ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, سوشل سائنسز کے اوپر, ہم اس کو کس دائرہ کار میں لا سکتے ہیں, غلط یا صحیح. PTA cannot decide this. اور جہاں تک صوبیہ کی بات ہے میں ان کو انڈورس کرتی ہوں جی ضرور. جو بے نظیر صاحبہ ہیں یا فار دیٹ میٹر ہمارے ملک کی کوئی بھی مایہ ناز شخصیت ہیں, ہم ان کو اس طرح باہر سے آنے والے یا ایون پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے ان کے خلاف یا کوئی بھی ایسی ڈسگریسفل ڈسکشن ان کے اوپر نہیں ہو سکتی. اور میرا آئی تھنک کہ آج ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم انہی چیزوں کے اوپر کوئی ایک رول آف لا بنا سکیں. جی تھینک یو. بہت شکریہ میڈم نورین صاحبہ, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. وہ جو آپ نے بات انٹرپریٹیشن کی بھی, میں صدر سے کمنٹ چاہوں گا بعد میں اس کے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو انٹرپریٹیشن FIA نے اور PTA نے اپنے پاس رکھ لی ہے,
یہ یہاں پارلیمنٹ کے پاس آئے ڈیفینیشن پہ ہم بات کریں, جس طرح ریاست میں بات کی ڈیفینیشن کو ہم ایکسپلین کر دیں, ویگنس ختم کر دیں تاکہ پھر جوڈیشل کو انٹرپریٹ کر سکیں. لیکن یہ جو ویگنس ہے, یہ کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے لا انفورسنگ ایجنسیز اپنے حساب سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اس پہ بعد میں ورڈ لیں گے. اس میں ابھی میں گزارش کروں گا ایک بات میں بس یہ ایک چھوٹی سی ایک اور یہ کرنا چاہتی ہوں کہ مطلب امپورٹنس تو دینی چاہیے. دیکھیں فریڈم ایکسپریشن کو امپورٹنس تو دینی چاہیے, لیکن دوسری طرف عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ نہ بولیں, اس سے اتنی زیادہ کنٹروورسیز پیدا ہوتی ہیں, انارکی پیدا ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ فریڈم آف اسپیچ ہوتی ہے تو اسی سے آئیڈیاز آتے ہیں نا جی, اسی سے آپ ترقی کرتے ہیں, اسی سے ڈیموکریٹک ایک سوسائٹی میں لوگ جب اپنے نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں تو اسی نیو آئیڈیاز سے بڑے ذہن اور بڑے دماغ پیدا ہوں گے, ایک اکنامک پراسپیرٹی آئے گی. تو یہ بھی ایک طرف یہ بھی ایک بحث کا نقطہ ہے جی. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بیسیکلی ایک ڈیلیکیٹ بیلنس چاہیے ہوتا ہے ریزنیبل ریسٹرکشنز میں اور فنڈامنٹل فریڈمز میں, اور وہ ڈیلیکیٹ بیلنس جو ہے نا, پارلیمنٹ از دی بیسٹ فورم ٹو کریٹ دیٹ بیلنس. اور وہ جو چاہے وہ اگر آپ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ہاتھ میں دے دیں تو ان کی کنسیڈریشنز, ان کی پرائرٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہے. دیٹس وائی وی آر ٹرائنگ ٹو برنگ دس ڈیبیٹ ود ان دی ایمبیٹس آف پارلیمنٹ تاکہ اس میں ہم لا میں اس کی خامیوں کا جائزہ لے سکیں. ابھی میڈم فرخندہ کوکب صاحبہ لائر ہیں, وکیل ہیں اور سوشل لائف ایکٹیویٹی سے بات نہیں سے گزارش کروں گا وہ کنٹریبیوٹ کریں ڈسکشن میں. دین ول گو ٹو فائل. جی میڈم فرخندہ کوکب صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں پہ بات کر سکوں. ایک بہت سینسٹیو ایشو جس کے اوپر ہم روز بہت ساری باتیں سن بھی رہے ہوتے ہیں, بہت ساری یہ کورٹس میں بھی اور بہت ساری لیڈیز اور لوگوں کے ساتھ یہ ایشوز چل رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے جو مجھے ساری ڈسکشن میں سے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر اس کو ریویو کے لیے بھیجنا چاہیے کہ اس کے اوپر ریویو ہو, اس کو ری اوپن کیا جائے, اس پیکا کو کہ اس پورے ایکٹ کو ایک دفعہ کھولا جائے اور اس کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کو 1 by 1 کر کے ڈسکس کیا جائے. پھر ہمیں کچھ باؤنڈری یہاں پہ اپنی سیٹ کرنی ہوں گی کہ ہمارے فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے اور ہمارے کرائمز کیا ہیں اور ٹیررزم کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر ہمیں اس کو دوبارہ سے اس کے امینڈمنٹ کے بعد اس کو دوبارہ سے اپلائی کیا جانا چاہیے. یہ میرا ایک چھوٹا سا ہے. جب تک ہم یہ چیزیں پارلیمنٹ میں نہیں لے کے جاتے, اس کے اوپر بحث نہیں کھلتی, یہ بہت بڑا ایک وسیع ایک سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ہم صرف یہاں پہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. ہر کسی کو جیسے کہ اب میرے نالج میں اور میری جو ڈیلی کی جو ہماری اسٹڈی ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, اور میں خود اس کو اپنے اوپر ایک اس کو گزار چکی ہوں. لاسٹ ٹائم الیکشن جو 2018 کا تھا اس کے اندر میری ڈیلی بیسس کی جتنی بھی روٹین ہوتی تھی وہ فالو ہو رہی تھی. ان کے اوپر نظر رکھی گئی تھی لوگوں کی کہ میں کہاں سے اٹھ رہی ہوں, کتنے بجے گھر سے نکل رہی ہوں, میری فون کالز کہاں جا رہی ہیں, کہاں نہیں جا رہی ہیں, میں کہاں جا رہی ہوں. اگر ہم اس کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, پاکستان کی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے, تو یہ obviously ضرورت ہے ہمیں اس وقت. لیکن ایک انسان کی اپنی پرائیویسی بھی ہے, اس کی اپنی ذاتیات بھی ہیں کہ اس کو کہاں جانا ہے, کہاں آنا ہے, اور یہیں سے ہمارے کرائمز جنریٹ ہوتے ہیں, یہیں سے لوگ ہمارا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, ہماری زندگیوں کو بھی نقصان ہوتا ہے, ہماری کریکٹر اسیسینیشن بھی ہو رہی ہوتی ہیں, اور ساری چیزوں کا جو سٹارٹ ہے وہ اسی جگہ سے ہوتا ہے. تو میں آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. میرا خیال ہے کہ میں ابھی بالکل اس میں اس پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں, میرے سے پہلے بھی ڈسکشنز ہو رہی تھیں اور ابھی میں صرف تھوڑا آبزرو کر رہی تھی ساری چیزوں کو. تو میں آخر میں بھی یہی بات کہنا چاہوں گی کہ اس کو ہمیں پارلیمنٹ کی کورٹ اس میں پھینکنا چاہیے کہ وہاں پہ اس کو دوبارہ سے ری اوپن کیا جائے, ایک ایک پوائنٹ کو اوپنلی کھل کے. اس کے اوپر زیادہ ٹائم لگے گا میرا خیال ہے, کوئی ایک آدھ دفعہ میں نہیں, اس کے اوپر فل اس کے اوپر ڈسکشن ہو, ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کیا جائے, سب کی باؤنڈریز طے کی جائیں اور پھر اس کو اپلائی کیا جائے. تھینک یو. تھینک یو میڈم فرخندہ, بہت شکریہ. میں ریکویسٹ کروں گا رضا علی صاحب سے پیس اینڈ جسٹس نیٹ ورک سے کہ وہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں 1610 کی الیکشنز کے ساتھ. سید رضا علی صاحب پیس اینڈ جسٹس نیٹ ورک سے.
रजा आप सुन रहे हैं? रजा अली साहब. शुक्रिया शफीक साहब. अच्छा अभी जो डिस्कशन, हाँ जी 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 बिल्कुल. अच्छा इसके अंदर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट है जो भी पॉइंट डिस्कस हुए उसके अंदर जैसे हमारे पास ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन लेजिस्लेटर्स हमारे साथ हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स को हम जब भी देखते हैं तो हमें सबसे ज्यादा जो इशू जो अभी 19A के कॉन्टेक्स्ट में भी और 19 के कॉन्टेक्स्ट में है कि हमने उधर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑलमोस्ट हर आर्टिकल के साथ लगाई हुई है और ये बहुत ज्यादा वेग एरिया है जिसकी कोई क्लैरिटी नहीं है. तो सबसे पहले तो रिकमेंडेशन में नॉट जस्ट 19 या 19A, मेरे ख्याल में तो हमें सारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, क्योंकि सबका ताल्लुक हमारी पूरी प्रोटेक्शन सिस्टम से है कि किस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न कर रहा है. सो मेरा तो ये सबसे पहले होगी कि फतेहाना साहब हैं, वो चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी लॉ के भी हैं, तो ये उन्हें टेकअप करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें डिफाइन किया जाए कि डिफाइन इनकी लिमिट्स क्या है, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स पे, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं जब एक्सप्लॉइट का यूज अगर करना हो, क्योंकि देयर इज नो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या, स्टेट का क्या है. सो ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है जिसे हम बहुत ज्यादा इसमें इंडोर्स करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सिविल सोसाइटी. मैं आपको एक बहुत इजी एग्जांपल दूंगा कि 2010 में फेयर ट्रायल का आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 10A एज अ फंडामेंटल राइट. फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इन लास्ट मई के अंदर एक जजमेंट दी है इन 2020 जिसे फर्स्ट टाइम बताया कि 10A के अंदर फेयर ट्रायल में होना क्या क्या चाहिए. यानी 10 इयर्स में हमारे पास कोई डेफिनेशन ही नहीं थी कि फेयर ट्रायल होता क्या है खाने को, लेकिन हमारे पास उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी. सो इसके ऊपर बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरह की बहुत ज्यादा आर्टिकल्स हैं और ये 19 खास तौर पे पीका के कॉन्टेक्स्ट में, फ्रीडम ऑफ प्रेस के एक्सप्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हमारे पास ये क्लैरिटी हो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, अदरवाइज फिर लॉ का कोई लिमिट नहीं रहती अगर हम एड्रेस करें. इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सबको एक आइडिया भी है कि एक साथ हमारे सिटीजन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑनलाइन हार्म रूल्स 2020 हैं. और आज इम्पोर्टेंट ये जैसे आज इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कशन पीका पे, सेम वे में पीटीए ने आन रूल्स में कोई चैलेंज है, कोई इश्यूज हैं तो उन्हें हम एड्रेस करते, तो वो भी आज पीटीए 4 जून को ही कर रहा है और ये बहुत रिलेटेड हैं. और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंटेरियंस उसे टेकअप करें इन दोनों रूल्स को, क्योंकि ये आपका पूरा फ्यूचर को डिफाइन करते हैं और ग्लोबल आपकी रिप्रेजेंटेशन भी है, क्योंकि इससे नजर आता है कि ग्लोबली हम कितने मतलब विजिबल हैं, कितने फ्री हैं, हमारे फ्रीडम ऑफ प्रेस का क्या लेवल है इन अ कंट्री, हमारे जर्नलिस्ट कितने फ्री हैं, हमारे जो और बाकी ब्लॉगर और जो भी हैं सिविल सोसाइटी, हमारी कितनी सिविक स्पेस हमें कितनी अवेलेबल है. तो इसके बहुत ज्यादा मीडियम्स हैं जो इससे कनेक्टेड हैं और ग्लोबल इंप्रेशन इससे बहुत ज्यादा है. तो ये हमें देखना चाहिए जो पीटीए आज डिस्कशन करवा रहा है सिटीजन प्रोटेक्शन रूल्स के ऊपर, ऑनलाइन हार्म के ऊपर. जैसे भी मैडम ने भी कहा कि हमें ये देखना है कि ऑनलाइन कौन सी डिस्कशन हार्म करती है और कौन सी डिस्कशन हार्म नहीं करती. तो इसलिए उन रूल्स को पीका के साथ लिंक करके, क्योंकि पीका की फर्दर जो रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर इसका बहुत ज्यादा रोल होगा. सो रिफॉर्म ऑलरेडी वी नो कि पीका के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है, इसे सिटीजन सेंट्रिक की जरूरत है. एफआईए जो इसे लीड कर रहा है, एफआईए को की स्ट्रेंथनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है और बहुत ज्यादा इस तरह के इसके अंदर सेक्शन हैं पीका के अंदर जिन्हें हमें ये रादर देन सिक्योरिटी सेंट्रिक करना चाहिए. सो ये जो गैप्स हैं उनमें सदर ने ऑब्वियसली जो गैप्स की डिटेल थी काफी डिटेल में उन्होंने किया, लेकिन इसमें एक और जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैप्स एड्रेस हो गए, लॉ रिफॉर्म हो गया, लेकिन अगर आप देखें कि लॉ में ये भी है कि 6 मंथ में कमेटी को उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी को एफआईए ने रिपोर्ट सबमिट करनी है कि क्राइम की नेचर क्या थी. अगर वो आज तक क्राइम की रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, अगर वो एफआईए कैसे एक्सपेक्ट करते हैं जो रिफॉर्म्स हो गए और उसे कर दिया, तो पार्लियामेंट वो अपना रोल लेके आए जहां पे इस तरह के स्पेशल जो लॉज हैं उन्हें टेक कर जिसपे पार्लियामेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व है. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट हर वक्त इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है लॉज की, लिमिट्स की, रिट्स हो जाती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन पार्लियामेंट
अपनी पावर्स यूज करते हुए, और मैं टोटली एग्री करूंगा इसके ऊपर, जो भी लॉज कोर्ट में रहते हुए करना चाहिए कि पार्लियामेंट इंश्योर करे कि जो लॉज वो लेके आ रही है उसका ट्रू स्पिरिट के अंदर उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो. अगर ऐसे स्पेशल लॉज हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है, जैसे मिसिंग पर्सन का इशू है या ये वाला पीका का केस है, सो उसके ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर रेगुलर रिपोर्टिंग आए, और अगर कोई गैप आ रहा है और उसमें कोई इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो पार्लियामेंट को खुद इसे टेकअप करना चाहिए. अदरवाइज रिफॉर्म्स आने के बाद भी अगर वो फुलफिल ना कर सका अपना पर्पस लॉ, तो वो ज़ाहिर है हमारे लिए बड़ा एक इशू होगा कि हम उसे कैसे आगे इम्प्लीमेंट करें. तो ये मेरे क्विक थे कि कॉन्स्टिट्यूशन की सारी लिमिटेशन को रिव्यू करना चाहिए. हम जो अभी रूल्स आ रहे हैं पीटीए जैसे रिव्यू करें, उसे इंटीग्रेट करें, और पार्लियामेंट इसके ऊपर लीड ले कि पार्लियामेंट के जो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उसे इम्प्लीमेंट हो. अगर रिपोर्ट्स नहीं आ रही और पार्लियामेंट ही नहीं अकाउंटेबल कर पा रही तो सिटीजन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि सिटीजन कैसे करेगा. थैंक यू शफीक साहब. बहुत शुक्रिया रजा, बहुत शुक्रिया. बेसिकली रीजनल रिस्ट्रिक्शन के हवाले से हमारे पास 2-3 सोर्सेज होते हैं हर जगह पर हम जब देखते हैं. एक तो सुपीरियर कोर्ट्स की जो इंटरप्रिटेशन होती है उनके डिफरेंट जजमेंट्स में आती है, और आपको पता है रिपोर्टेड जजमेंट्स होती हैं, उसमें वो जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स लिटिगेशन होती है, उसमें वो एक्सप्लेनेशन होती है, उसके वहाँ से गाइडेंस दी जा सकती है. बेशुमार जजमेंट्स एफओई के हवाले से मौजूद है, आर्टिकल 19 के हवाले से मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिछले दिनों केसेस आए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है. जब ये हम पिटीशन में गए थे तो हमने उनका रेफरेंस दिया था अभी. दूसरा इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, और वहाँ पे जो ICCPR इंटरनेशनल कॉवेनेंट सिविल पॉलिटिकल राइट्स है उसकी जो कमेटी है यूएन की, यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी कहते हैं, उनके जनरल कमेंट्स आते हैं, उनकी कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस आती हैं, जिसमें वो अपने आर्टिकल के हवाले से एक्सप्लेन करते हैं, वो गाइडेंस देते हैं स्टेट्स के लिए. वो भी एक सोर्स होता है कि वहाँ से चीज़ें मिल सकती हैं. तो इसमें चीज़ें मौजूद है जहाँ से हम चीज़ें ले सकते हैं. तो असल में बात यही कि जिसके ऊपर डिबेट स्टार्ट करके इसको इन चीज़ों को जब हम स्टार्ट करेंगे लॉ की रिफॉर्म जिसे राज साहब ने कहा उस तरफ जाएंगे, फिर हम उन सारी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के और उसके अलावा यूएन गाइडलाइंस के, यूएन की जो कमेटी है उसके जनरल कमेंट्स के सबके रेफरेंस भी देंगे, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स उसके भी रेफरेंस देंगे उनकी गाइडलाइंस के, ताकि उसमें हम पार्लियामेंट में इसको प्रॉपर डिबेट करा सकें. इसमें सदफ आपको ऐड करना चाहिए, उसके बाद फिर हम राज साहब की तरफ जाएंगे इसमें. जी सदफ, और बल्कि मलिया भी कोई ऐड करना चाहिए सदफ के बाद. थैंक यू चौधरी साहब. आई जस्ट क्विकली, मैंने चैट में कुछ चीज़ें कॉपी की हैं रिगार्डिंग नौरीन साहब और दूसरे जो पॉइंट्स रेज किए कि फ्री स्पीच की डेफिनेशंस क्या होनी चाहिए, किस तरह से डिफाइन होनी चाहिए. तो जो यूएन के स्पेशल रिपोर्टर है फ्रैंक लारू, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के रिपोर्टर थे फ्यू इयर्स बैक, उन्होंने एक 3 पार्ट टेस्ट डिफाइन किया था, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी का एक प्रिंसिपल था कि रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द लॉ व्हिच इज क्लियर एंड एक्सेसिबल. जो दूसरी थी, इट मस्ट बी इन परसूट ऑफ द पर्पसेस सेट आउट इन आर्टिकल 19. वो आईसीसीपीआर की बात कर रहे थे, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे भी उसी तरह अप्लाई हो सकता है कि अगर कोई लिमिटेशन आर्टिकल 19 के अंदर मौजूद नहीं है तो कोई सब्सिक्वेंट लॉ उससे बाहर बढ़ के रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता. अनफॉर्चुनेटली वी हैव सीन दैट हैपनिंग रिसेंटली. जो सोशल मीडिया रूल्स आए उसके बाद जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी आया है उसके अंदर एक एथनिसिटी वाला क्वालिफायर भी ऐड किया गया है, जो हमने पहले कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या कहीं पे नहीं देखा. एथनिक सेंसिटिविटीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस की जो बात है. एंड जो थर्ड पार्ट है, दैट्स नेसेसरी एंड लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मींस, जो नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी का इंडिकेटर है. ये स्पेशली डिजिटल के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है और पीका के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है. और इसका बेसिक मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई बात करती हूँ ऑनलाइन ट्विटर पे और मेरे कोई खास फॉलोअर्स नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू लेट्स से कोई फेमस जर्नलिस्ट. अगर हामिद मीर साहब कोई बात कर देते हैं, कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई कैबिनेट मेंबर कोई बात कर देता है, और अगर वो बात का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो जो अब करंट लेजिस्लेशंस आ रही हैं और करंट जो फ्रेमवर्क्स बन रहे हैं फ्री स्पीच के, वो ये देखते हैं कि जो इम्पैक्ट डिजिटल स्पीच का है वो कहीं ना कहीं फैक्टर इन होना चाहिए कि स्टेट का रिस्पॉन्स उसकी तरफ कैसा आ रहा है. सो एक रैंडम पर्सन जिसके 2 फॉलोअर्स हैं, अगर वो लेट्स से इंसाइटमेंट टू वायलेंस भी करता है, आप उसको, और एक
बंदा जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस करता है, उन दोनों को सेम स्केल पे जज नहीं कर सकते, विच इज ऑब्वियसली वेरी ट्रिकी टू लेजिस्लेट ऑन। लेकिन ये प्रिंसिपल्स कुछ डिफाइन किए गए हैं, मैंने कॉपी भी किए हैं चैट के अंदर। बाकी आई कम्प्लीटली एग्री, इट्स हाई टाइम कि हम पार्लियामेंट के अंदर इस डिबेट को दोबारा ओपन करें, और ये जो कुछ फिलोसफिकल और प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर भी डिस्कशन करें बिफोर एक्चुअली गोइंग ऑन टू लेजिस्लेशन, क्योंकि मुझे ये चीज बहुत ज्यादा मिसिंग नजर आती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्लियामेंट्री डिबेट्स में हम बहुत सतही और उसके अंदर फंस जाते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस और जैसा आप कह रही थी कि जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है लोगों की वो उसी वक्त बिल्ड होगी जब हम इन फिलोसफिकल बहस को जो कॉम्प्लिकेटेड हैं और जो लोगों को लगता है कि थोड़ी रिमूव है, जब तक हम इन्हें रिजॉल्व नहीं करेंगे आई डोंट थिंक उनकी रिफ्लेक्शन हमें अपनी लेजिस्लेशंस में नजर आएगी। सो आई एम रियली ग्लैड के आई एम सीइंग के लोग इन्वॉल्व हैं इस फिलोसफी के अंदर कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या कैसे, और स्पेशली नए आज के दौर में जब ग्लोबली एवरीबडी इज ऑन द स्पॉटलाइट, तो हम किस तरह से वो करें। थैंक यू चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया सदफ। ज़ोया रहमान साहब ने हाथ रेज किया था, ज़ोया आप कोई बात करना चाहती हैं बीच में? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मीडिया मैटर्स टू डेमोक्रेसी से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं सदफ की कॉलीग हूँ। मैंने सिर्फ ये बात करनी थी कि मतलब हम लोग एक थोड़ा सा वो भी देख लें कि हमने आगे जो डेटा प्रोटेक्शन, अभी ये जो ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है और इसके अलावा जो रूल्स पे भी कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू हुआ है, उसके हवाले से मतलब क्या पार्लियामेंट में हो सकता है, बिकॉज जो रूल्स हैं इन पर्टिकुलर वो काफी प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि पहली तो बात ये है कि बेसिकली गवर्नमेंट का, और ये आप डेटा प्रोटेक्शन जो भी ये ड्राफ्ट बिल है उसमें भी देख सकते हैं कि मतलब गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि एक तो कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड हो, वो तो हमें पीका में भी नजर आता है, हमें रूल्स में भी नजर आता है, इस बिल में भी नजर आता है, बट अदर देन दैट वो मतलब लोकलाइज हमारा डेटा करना चाहते हैं, स्पेशली जो सोशल मीडिया कंपनीज वो है वो करना चाहते हैं और उनकी प्रेजेंस लोकलाइज करना चाहते हैं, ताकि उनको यही है कि जो मतलब वो बेसिकली सोशल मीडिया कंपनीज जितनी भी ये लोग सेंसरशिप चाहते हैं करें, जितनी भी मतलब डेटा एक्वायर करना चाहते हैं उस बेसिस पे इनके साथ पूरे तरीके से ताउन करें। इसके अलावा मतलब ये भी एक इशू है कि पीका में अगर आप देखें तो सेक्शन 37 सब सेक्शन 2 के तहत ये रूल्स बनने थे, लेकिन इसमें ये रूल्स जो हैं दे गो वे बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पेरेंट एक्ट। इसमें दो हैं लेकिन पीका बीइंग द प्राइमरी वन। एक तो वही कि नेशनल कोऑर्डिनेटर की जो पोजीशन एक मतलब एक सोल आर्बिटर की पोजीशन क्रिएट करना कि बेसिकली जो भी वो कहे वो ठीक है, अगर उससे कोई डेटा हटाना है, अगर उसको किसी का डेटा अक्वायर करना है, किसी किस्म की भी मतलब डिजिटल कंटेंट की रेगुलेशन है, ये प्रॉब्ली कोई मतलब एक्स ऑफिशियो मेंबर ही होगा। सो ये एक तो काफी जरूरी बात है। दूसरा ये है कि in any case अगर हम लोग AIC की भी स्टेटमेंट देखें, अभी भी I'm sure that they will be coming up with something in the next few days regarding the consultative process. तो मतलब सोशल मीडिया कंपनीज in any case मतलब बिल्कुल भी obliged नहीं है कि वो पाकिस्तान आके अपने लोकल दफ्तर बनाए, और मतलब ये हमारा ही उस तरह से नुकसान है, बिकॉज जाहिर है मतलब अगर हमारी कोई अब ये डिजिटल पाकिस्तान की भी पॉलिसी है या डिजिटल इकोनॉमी पे भी हमारा फोकस है, तो मतलब उल्टा हम लोग ही इस बारे में मार खाएंगे। तो अभी मतलब गवर्नमेंट ये तो कह रही है कि उन्हें रूल सस्पेंड कर लिए हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रही कि वो सिरे से काम कर रही है, और पार्लियामेंट्री इन्वॉल्वमेंट कितनी है। अभी तक फेडरल गवर्नमेंट का ही इसमें रोल प्राइमरी है जहां तक रूल्स की भी तामीर की बात है। तो आई थिंक इस हवाले से भी हमें देखना है कि आगे हम सबकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये पार्लियामेंट में बात किस तरह से खुले और इसको किस तरह से हमें आगे लेके चलें। Thank you very much for your feedback. This is really helpful. Now we request Malia from UNESCO, from UNESCO, to share her comments and opinion on this. Malia Sahaba, please. अस्सलाम वालेकुम हरे को। थैंक यू शफीक साहब। मेरे ख्याल से टेक्निकल एस्पेक्ट सारे कवर हो चुके हैं एंड वी हैव एक्सपर्ट्स विद अस। मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगी ऑल द एक्सपर्ट्स एंड पार्लियामेंटेरियंस हु हैव टेकन पार्ट। जैसे शफीक साहब ने कहा, हम एक सीरीज में कर चुके हैं FGDs एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यूनेस्को का एंड से वी रियली अप्रिशिएट जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है एंड वी रियली सी कि ये एक ऐसा इशू है कि ये कहीं जाने नहीं वाला, बिकॉज आप जैसे देखें जो सोशल मीडिया रेगुलेशंस हैं उनका भी पेरेंट लॉ एक्ट से पीका ही है, और उन सोशल मीडिया रूल्स के सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नहीं बल्कि बहुत सारे इकोनॉमिक और सिविल राइट इम्प्लीकेशंस भी हैं। तो ये एक ऐसी डिस्कशन है जो बहरहाल
ہمیں کرنی ہی تھی. تو آئی تھنک جیسے کہ ڈیجیٹل پاکستان کا بھی ذکر ہوا ہے, اس لا کی امپلیمنٹیشن کے اتنے فار ریچنگ اور ڈفرینٹ قسم کے افیکٹس ہیں کہ ایونچولی اس کو ریزالو ہونا ہی ہے. اینڈ جو ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے, اور ہیٹ اسپیچ بھی ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہم کمپلیٹلی اگنور نہیں کیا جا سکتا بالکل بھی, بلکہ جو امپلیمنٹیشن چیلنجز کی بات ہوئی ہے کہ امپلیمنٹیشن سلیکٹیولی نہیں ہونی چاہیے, پروپورشنیٹ ہونی چاہیے, بیسڈ آن نیسیسٹی ہونی چاہیے. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی دیٹ وی ہیو اے سینس آف اگریمنٹ آن دیز پوائنٹس. تو میرے خیال سے آگے ڈسکشن کنسٹرکٹیولی جا سکتی ہے. اور ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گی, اٹس اے ویری پازیٹیو سائن, اس لیے کہ یہ ایک, جیسے صدف نے بھی کہا کہ اٹس اے مچ بگر ڈبیٹ, یو نو اٹس ناٹ صرف ایک لا کا میٹر نہیں ہے, بٹ جسٹ دس ایکسرسائز آف ری اسیسنگ اینڈ امینڈنگ, یہ ایک ہیلدی ڈیموکریسی کے لیے اسینشیل ہے. So I think it's an encouraging sign that parliamentarians are showing their support, and we have faith and confidence that this will go in a positive direction. And jo digital media se related laws ki implementation hai, this is something that the world is struggling with. It's not just Pakistan. Ye itna rapidly evolve ho raha hai ki I think hamare parliamentarians, if they are also realizing that having that depth of understanding about how digital media works, it's going to take time. But luckily ہماری CSOs میں we see اس طرح کا human resource pool who understand it very well, who are really you know contemporary جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں current situation کے ساتھ globally بھی they are aware of it, and it's good to see کہ وہ اتنا ہی timely ہمارے parliamentarians کو update کر رہے ہیں. So we are very hopeful that we'll have a positive outcome. Thank you. Inshallah, Malia, thank you very much for your contribution. میرین اور میرین مبشر صاحب ہماری ایس ٹی جی ہمارے سیکریٹریٹ کی پارٹ ہے. if she wants to say something on this topic, میرین مبشر. جی سر, ہمارا اینڈ سے ہم لوگ جس طرح کی ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں اس سے ہمیں سارے یہ جو 25 پیج کا لا ہم نے پڑھا ہے اس کو تھوریلی, اس کے حساب سے ڈیفینیٹلی دیر آر لوپ ہولس, ہمیں ڈیفینیشنس چاہیے, ہمیں پورا ایک اس کو بنانا ہے پوری طرح سے. We are there to help our parliamentarians ہر طرح کی سپورٹ کے لیے اور ہر طرح کی ریسرچ کے لیے, جو بھی آپ کو ہمارے اینڈ سے ریکوائرڈ ہوگا, we are there to help you guys. Thank you. Thank you میرین. حسن صاحب آپ اس پہ بات کریں گے کنٹینٹ کے اوپر, سبسٹنس کے اوپر, ایشو کے اوپر, رائٹس کے حوالے سے, واٹ ایور جس طرح جو آپ بات کرنا چاہیں. حسن حکیم صاحب پلیز. آواز نہیں آ رہی حسن آپ کی. آواز نہیں آ رہی حسن. جی ہیلو, میری آواز اب آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی. جی میرا خیال ہے more or less everything under the sun has been covered, but then detailed reinterpretation of Article 19 بھی ضروری ہے. اور میرے خیال میں if we take a step back تو بڑا ضروری ہے کہ یہ ساری ڈسکشن جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لے کے آئی جائے اور وہ پارلیمنٹری ڈسکورس بنایا جائے rather than ادارے اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہوں. And I'm glad کہ ہم فتیانہ صاحب کی لیڈرشپ میں we're taking this forward, and میڈم نورین صاحبہ نے بڑے pertinent points پہ وہ کی بات کہ ایک وہ فائن بیلنس ڈھونڈنا بھی بہت ضروری ہے. اینڈ آف کورس ہماری ٹیم ساتھ ساتھ ہے, شفیق صاحب کی PCHR کی سپورٹ کے لیے, علی رضا کے ادارے کی ہم لوگ ساری, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ سول سوسائٹی کو بیچ میں انوالو کیا جائے سائلوز میں بجائے اس کے کام ہو. تھینک یو. تھینک یو حسن فار انشورنگ یور سپورٹ. اب میں ریاض صاحب کو بلانے سے پہلے میڈم نورین ابراہیم سے کہوں گا کچھ اس پہ کمنٹ کریں جو ڈسکشن ہوئی, اور کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہیں پھر فتیانہ صاحب اس کو ریپ اپ کر کے جواب دیں گے, اس کو کنکلوڈ کریں گے ریاض صاحب بعد کی ڈسکشن. جی میڈم نورین صاحب. اگر جی یہاں پر اگر ہم پیورلی کانسٹیٹیوشنل ٹرمز کی بات کریں نا, تو یہ جو پی اے ہے, پی کا, یہ آرٹیکل 10 آپ کا, آرٹیکل 14, آرٹیکل 19 if I'm not wrong, تو ان کی جو ایکچوئل جو اسپرٹ ہے نا, اس کے فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے بہت ساری پابندیاں عائد کرتا ہے. تو آئی تھنک ہمیں اس کو ریوائز کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے.
اور اس ڈسکشن کو اور آگے بڑھنا ہے. ابھی ہم آج تو پہلا دن تھا, ہم لوگ اس میں لائک وی آل, میں نے بھی پڑھا ہے, میں نے بھی سارا دیکھا ہے, تو آئی تھنک یہ بہت اچھا ایک آپ نے اسٹیپ لیا ہے, اینڈ وی شوڈ گو فردر فرام ہیئر. تھینک یو. تھینک یو میڈم نورین صاحب. اب میں ریاض ستانہ صاحب جو ہمارے چیئر ہیں آج کی میٹنگ پریزائڈ بھی کر رہے ہیں, اس سے گزارش کروں گا اس کو کنکلوڈ کریں آج کی میٹنگ کو, اور ہمارے وے فارورڈ میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جناب ریاض ستانہ صاحب. جی شکریہ شفیق چودھری صاحب. میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ آج بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی, اور اسپیشلی آرٹیکل 19A کے تحت جو ہمیں فریڈم آف پریس بھی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے, فریڈم آف اسپیچ بھی ہے, تو انشور کرنا ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پریویل کرتا ہے لا سے زیادہ مقدم اور سپریم. دوسرا یہ کہ ایس ڈی جی گول 16 اور ٹارگیٹ 10 جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پاکستان سے سیکورٹی ہے اور ہم اس کے سب کسٹوڈین, اس پہ بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے اور کام کرنا ہے. تیسرا یہ کہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے فیکا 2016 کی, اس میں کافی ساری کمزوریاں کمی بیشی ہے, اس کو ہمیں اگین پوسٹ لیجسلیٹو اسکروٹنی کرنا ہوگی اور اس میں امپروومنٹ کرنا ہوگی اس لا. مزید یہ کہ چونکہ رولز نہیں بنے تو ہمیں کوشش کرنا ہوگی کہ کریں اور لے کر آئیں. مزید یہ کہ رول آف پی ٹی اے اور رول آف فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ ابھی تک واضح نہیں ہو رہا, کیونکہ اس میں ان کی کافی ڈیفیشنسی ہے. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا ہوگی, ان کو نئی ٹیکنالوجی سے لینا ہوگا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پورا وہاں استعمال کرنا ہوگا, اور اپنے لوگوں کو امپروو. تو 10 مہینے یہ بھی جیسے بات کہی یہاں پہ ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ نے, یہ حقیقت ہے کہ اس وقت تو میرا خیال ہے جتنا زیادہ نقصان لوگوں کی شہرت کو ہو رہا ہے, ڈائریکٹر اسیسینیشن کردار خوشی, اس کا کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. 10 مہینے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور فری ہینڈ ہے لوگوں کو, اور فیک آئی ڈیز بنا کے لوگوں نے کام شروع کیا. مزید یہ کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ٹیررزم اور پورنوگرافی اور اکنامک ایشوز اور ان چاروں کو الگ الگ ہمیں دیکھنا ہوگا, ان کو کمبائنڈ اور کلب نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں لا میں بھی اس میں کچھ ہمیں مزید امپروو کرنا ہوگا کہ ہر لا اسپیسیفک جو ہے لا کے اندر ایسے سیکشن ایڈ کرنے ہوں گے جو کچھ صرف ٹیررزم کو ڈیل کریں, کچھ پورنوگرافی کو, بچوں کے رائٹس کو, کچھ اکنامک رائٹس کو, اور کچھ اسپیشلی پولیٹیکل رائٹس کو, تاکہ ان کی بدنامی نہ ہو. اس کے علاوہ جو صورتحال ہے, اب دیکھیں ایک لا تھا پہلے, ٹیلی گراف ایکٹ کہتے تھے اس کو, ابھی بھی ہے, وہ بڑا افیکٹو تھا. اس میں اگر ٹیلی فون پر کسی کو آپ گالیاں دیتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, تو ابھی بھی وہ پولیس درج کرتی ہے, وہ پروونشل لا بھی ہے, اور اس وقت اس پہ ابھی بھی گرفتاریاں سب ہوتی ہیں, لیکن اس پہ پولیس ایکٹیو نہیں ہوتی. وہ کہتی ہے ہمیں کیا ضرورت ہے, آپ تو کوئی پولیس کے پاس جائے وہ کہتے ہیں آپ ایف آئی اے کے پاس جائیں, ہمارا یہ ڈومین نہیں ہے. ایف آئی اے کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کا سائبر کرائم ونگ ہے, اس کو بھیج دیتے ہیں, وہاں کوئی پوچھ نہ کرتے ہیں. تو اس پہ ہمیں کافی کام کرنا ہوگا. یہ ابھی آخری سیشن میں کریں گے. آخر میں اسپیشلی شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ کا, بڑی سی گفتگو انہوں نے کی, اور نورین ابراہیم صاحبہ کا. نورین نے بہت اچھی بات کہی. نصرت واحد صاحبہ موجود تھیں, شہر انہیں پہ جانا پڑ گیا, وہ چلی گئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ صدف نے بہت اچھا ایکسپلین کیا, اور 2 دفعہ بات کی, تو ویری انٹرسٹ, بڑا اچھی ان کی گفتگو تھی اور بڑا نالج ان کے پاس ہے. اس کے ساتھ سید رضا علی نے بہت اچھی بات کہی, فرخندہ توفیق ایڈوکیٹ صاحبہ نے, مس زویا نے بھی کچھ کہا, اور میرین مبشر, حسن حکیم, ان دونوں کو بھی مبارکباد. ہماری ٹیم ہے بہت ایکسپشن لوگ ہیں کام کرنے والے. اور شفیق چودھری صاحب آپ کو اسپیشلی کہ آپ نے یہ پورا آرگنائز کیا, کنڈکٹ کیا, اور کامیابی سے اس کو بنا دیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سر بہت شکریہ, بہت مہربانی ریاض صاحب آپ کی ہمیشہ ہمیں سپورٹ اور گائیڈنس رہتی ہے. میں بس کوئکلی ایک بات, کیونکہ ہمارے ساتھ ملیہ, صدف, رضا موجود ہیں, اور ان کو پتہ ہے سوشل میڈیا ریگولیشنز کے حوالے سے اس فورم سے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں یہ, ہم اگر آپ کی اجازت سے یہ کہیں کہ جی اب سوشل میڈیا جو ریگولیشن جو گورنمنٹ کے ہیں اس کا جو کنسلٹیٹو پروسیس اس کو انشور کیا جائے کہ صحیح ٹرو اسٹیک ہولڈر کے ساتھ اس کو براڈ بیس کنسلٹیشن کی جائے,
اور جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر ان کے ساتھ کنسلٹیشن کی جائے. جب تک وہ کنسلٹیٹو پروسیس براڈ بیسڈ نہیں ہوگا, ٹرو نہیں ہوگا, تو اور جب تک پارلیمنٹ میں ہم چاہتے ہیں اس کو ڈیبیٹ کیا جائے, جو سوشل میڈیا ریگولیشن ہے, پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے, چاہے لا جسٹس کی ہے, چاہے آئی ٹی کی ہے, چاہے ہیومن رائٹس کی ہے, جس میں وہ ڈیبیٹ کرنا چاہیں ڈیبیٹ کریں, تاکہ اس میں اس کے مطابق نافذ کیا جا سکے. اگر پارلیمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہوگی تو ایسے کوئی بھی, جیسے حسن نے کہا, کوئی بھی رولز ریگولیشنز پارلیمنٹ کو انوالو کیے بغیر جب ان کو ہم نوٹیفائی کرتے ہیں تو اس میں مس یوز کا آنسر ہوتا ہے. یہ آخری بات میں آپ نیشنل اسمبلی کے رولز اور پروسیجر گائیڈ کا بزنس 2007 ہے, اس کا رول 225 ہے. 225 کے اس ایشو پہ بات کر سکتے ہیں. رائٹ سر, ہم پھر پبلک پٹیشن بھی آپ کو ڈال دیتے ہیں سر. اس میں پبلک پٹیشن آپ اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس میں بھجوائیں, اس پہ ہم بلا لیتے ہیں سب کو. بہت شکریہ جی. صدف آپ نے سن لیا, ہم اس میں پبلک پٹیشن, رضا آپ نے بھی سن لیا, پبلک پٹیشن ڈالتے ہیں اس میں, تاکہ اس میں ساری ایشوز پہ بات ہو جائے گی. میں تمام دوستوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں فار ٹوڈیز میٹنگ اینڈ لک فارورڈ ٹو سیئنگ یو اگین ویری سون انشاءاللہ. آپ کے سب کے ساتھ شیئر کر لیں گے جی. بہت شکریہ. تھینک یو چودھری صاحب. تھینک یو. اللہ حافظ.